हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 25 एनर्जी। वी काइंड ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। ओके, द वर्ड एनर्जी मीन्स द कैपेसिटी टू डू वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अ लाइट बल्ब विल लाइट अप व्हेन इट इज़ प्रोवाइड विथ इलेक्ट्रिसिटी। आप देख सकते हो कि लाइट बल्ब है, उसे ऑन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Also, when a river flows with great speed, it exerts force and it possesses energy to do work. हर कोई भी कुछ भी होता है उसके लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है। सिमिलरली द मसल्स इन आवर आर्म्स हैव द एबिलिटी टू लिफ्ट थिंग्स। द बॉडी कंटेन्स एनर्जी which is used when the muscles work. We can thus define energy as the ability to do work. Energy cannot be created or destroyed. Forms of energy can, however, be interchanged. A car's engine burns fuels. आप देख सकते हो कार का इंजन होता है, उसमें बर्न्स मतलब फूल मतलब तेल जो होता है, पेट्रोल जो होता है, उसकी ज़रूरत होती है। कन्वर्टिंग द केमिकल एनर्जी इन फ्यूल इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो केमिकल्स जो हम इन्हें देते हैं जिससे ये चलते हैं, उसके लिए हमें उसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनर्जी कहा जाता है। सोलर सेल्स चेंज लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Energy can also be transferred from one things to another, to another. For example, a car colliding with another car at rest makes the second car move. In this way, the total amount of energy in universe stays the same. Types of energy. Mechanical energy is the energy possessed by an object due to its motion or due to its position. Mechanical energy can be two types: kinetic energy and energy of motion, or potential energy, stored energy because of positions. आप देख सकते हो कि काइनेटिक और मैकेनिकल दो क्वांटिटेटिव एनर्जी दो प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इज द इंटरनल एनर्जी इज सब्सटेंस जनरेट बाय द मूवमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज इन सब्सटेंस। हीट एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल एनर्जी। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, हैंड को इस तरीके से करें तो हमारे अंदर से एक एनर्जी आती है, उसे हीट एनर्जी कहते हैं। थर्मल एनर्जी भी कह सकते हैं। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन एंड व्हेन वी बर्न वुड, केरोसिन एंड अदर फ्यूल्स इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग। केरोसिन है और अदर जो फ्यूल्स हैं बर्न वो जो होते हैं वो कुकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हीटिंग water as well as keep us warm. When rub our palms together, heat energy is generated due to frictions. Okay. अब यहाँ पे बात करते हैं लाइट एनर्जी। लाइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज वेरी important. The largest and the most important source of light for the earth is the sun. Without it we world be unable to see, and green plants will be unable to make their own food. Okay. Object sun, as the sun start and candle flame give off their own light, which is known as incandescent or direct light. They radiate lights because they are very hot. When direct light from one object is bounced off another object, it is known as reflected light. For example, the moon reflects the light from the sun. Not all surface reflect light.
Light passes through some object instead of bouncing off them. Materials that allow light to pass through them are known as transparent materials. We can clearly see through object. A clear glass is good example of a transparent material. Materials that do not allow light to pass through them are known as opaque materials. We cannot see through an opaque material. Translation materials such as butter paper allow some light to pass through them. We can see them particularly. Okay, next topic है हमारा sound energy. Sound we hear are produced by air particles vibrating. आप जानते ही होंगे साउंड कैसे उत्पन्न होता है. Hitting a ruler against a tablet top or plucking taut rubber bands there, the object move, vibrate, emitting a sound. The energy of vibration is passed on the tiny molecules of air sounding the object, making them move. The stronger the vibration, the louder the sound will be. Vibration moving through air and known as sound waves. It is when sound waves reach our ears that we hear sound. Sound can only travel through matter. It cannot travel in outer space or in any vacuum where there is no matter. Sound moves at a speed of about 330 m per second and can travel through gases, liquid and solid. Sound levels के बारे में जानते हैं. The loudness of sound is measured in decibels dB. A sound of 0 decibels is too low for the human ear to hear, and a sound of more than 140 decibels can damage the upgrade ears. आप देख सकते हो कि साउंड हम किस तरीके से हम माप सकते हैं डीबी से, जिससे हमें पता पड़ सकती है कि कितना साउंड है. When sound hits a barrier such as a wall or a cliff, it can be reflected. This is known as an echo. Some common sound along with their levels of loudness are shown in the tables. Okay, आप देख सकते हो यहाँ पे साउंड और डिसेबल डीबी मतलब कितना है. एयरक्राफ्ट इंजन का साउंड कितना है 100, 200. जैक हार्मर का 100. सो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ दिया गया है. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैवी ट्रैफिक का है 90. कन्वर्सेशंस मतलब कि एक दूसरे से बात करना, उसका है 40 to 60. विस्पर 20. लीव्स रोस्टिंग 10. ओके. इलेक्ट्रिक एनर्जी इज लो फ्लो और इलेक्ट्रिकल पावर और चेंज. वी यूज इलेक्ट्रिसिटी एवरी डे टू जनरेट हीट लाइट पावर टू रन इलेक्ट्रिक अप्लाई. Electric energy is the flow of electric power or change. We use electricity every day to generate heat, light and power to run electrical appliances. Electricity is a form of energy. आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म है एनर्जी का. इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोलर एनर्जी, विंड, पेट्रोल, कोल, वाटर, ऑयल, नेचुरल गैस एंड केमिकल्स. ये जो हैं इनसे ही इलेक्ट्रिसिटी हमें प्राप्त होती है यानी मिलती है. द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज एवरी डे इन आवर होम्स मूव्स अलोंग वायर्स के थ्रू ये हमारे घर में आती है. इन रेस एवरी डेज होम्स अलोंग वायर. दिस मूवमेंट और
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन जो करंट, इनमें से करंट आता है। जो करंट होता है वायरों में, ये बहुत खतरनाक होता है, कई बार इनसे जान भी जा सकती है इंसान की। मटेरियल्स दैट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रो देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कॉपर्स एंड सिल्वर आर गुड कंडक्टर्स और इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कॉपर एंड सिल्वर के तार को इस्तेमाल किया जाता है, गुड कहा जाता है, अच्छा होता है वो उनके लिए, उसके लिए। एंड आप कभी भी देखना, आप तार को ना तोड़ के उसको देखना, अंदर से खोल के उसके अंदर कॉपर के तार इस्तेमाल किए जाते हैं, वायर जो होता है उसके अंदर से। मटेरियल दैट डू नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रो देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। रबर एंड वुड आर इंसुलेटर्स। आप देख सकते हो अगर करंट लगे या कुछ भी ऐसा हादसा होता है हमारे साथ इंसुलेटर्स, तो हम रबर्स और वुड मतलब लकड़े से उस करंट से दूर हट सकते हैं, उससे अपना बचाव कर सकते हैं। दिस पिक्चर शो अ सिंपल इलेक्ट्रिसिटी सर्कुलेट। अ बल्ब इज कनेक्टेड विथ वायर्स टू बैटरी and a switch. When the switch is turned on, the connection is complete and the bulb light up. When the switch off turned off, connection is incomplete and the bulb does not light up. आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल, आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी को हमारे जैसे बल्ब है, हमें ऑन करना है तो हम स्विच ऑन कर देंगे, अगर हमें बंद करना है तो हम स्विच ऑफ कर देंगे। इससे क्या है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी आनी बंद हो जाती है और हमारी मतलब जितनी हमें नीड होती है हम उतना ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज एनर्जी स्टोरेड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। It is the energy that holds these parcels together. Biomass, petroleum, natural gas, and propellant are example of stored chemical energy. We consume carbohydrates as food. Carbohydrate molecules also store energy. Body cells obtain his stored energy by process called representation. Some of the stored potent energy because kinetic energy used for cell fraction and molecules movement. Some of it also because internal heat energy that keeps body warm. आप देख सकते हो कि एनर्जी कितनी ज़रूरी होती है जिससे बॉडी हमारी वार्म होती है, गर्म होती है। Work is the application of force over any distance. Work is said to be done. The force applied on the object makes the object move in the direction of the force. Moving object by pushing, pulling, and lifting are different forms of work. Simple machine make work easier for us. Simple machine reduce the force to be applied to. They allow to us to overcome a force at one place by enabling the force to be applied elsewhere. आप देख सकते हो कि मशीन जो हमारी होती है इसमें से हमें इतना, अगर हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इतना बल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारा मोस्ट ऑफ काम मशीन से ही हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से। देयर आर 6 सिंपल मशीन्स, इंक्लाइन, प्लेन, लीवर, पुलरी, स्क्रू, वेज एंड द व्हील एंड एक्सेल। कंप्लीटेड ऑफ द कंपाउंड मशीन्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ द टू टाइप्स, 2 और मोर सिंपल मशीन्स वर्किंग टूगेदर। ये रहा, आप देख सकते हो, इंक्लाइन, प्लेन, लीवर, पुलरी, स्क्रू, वेज एंड व्हील, एक्सेल मशीन्स के पार्ट्स हैं ये। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि क्या इसका वो है। इट इज़ अ स्प्लिटिंग सरफेस कनेक्टिंग अ नो लेवल टू द हाई लेवल, ओके। और उसका वर्क क्या है, मूव ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंस बट लेस फोर्स इज नीडेड सिंस इट डजंट हैव टू बी लिफ्टेड अप, ओके। एंड रैम्प, एग्जाम्पल रैम्प, वेडलिंग अपहिल रोड। ये रहा, इस तरीके से सारा कुछ समझाया गया है। और अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मशीन्स। कॉम्प्लेक्स मशीन्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2
or simple machines working together. Scissor to the two arms of pair of scissor are layers. आप देख सकते हो 2 हिस्से होते हैं, 2 भागों में होते हैं. The cutting edge of the scissor blade and widage. ये रहा 2 हिस्से हैं. Corkscrew and the handle. ये रहा corkscrew. And the handle at the top is the wheel and axle. The spiral metal pieces the screw into the cork is a screw. The 2 side arms that are pushed down are 2 levers. ओके, सीजर 2 लेवर्स में है और उसको देखा है आपने किस तरीके से संभाला गया है, किस तरीके से बताया गया है. और कॉक्सू को अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमें यहाँ पे समझाया गया है. कैन ओपनर, द हैंडल दैट मेक्स अ कैन रोटेट इज व्हील एंड एक्सेल. द 2 लॉन्ग आर्म्स दैट क्लैप द कैन आर लेवर. द circular wheel that cuts the can's lead has a sharp edge and widage. ओके, अब इसके हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू सो मच.